In Bhakti Yoga, Lord Sri Hari Krishna, so Lord Madhusudana, in Bhakti Yoga, Srimad Bhagavad Gita stated, and this is stated by Swami Vivekananda. After reading of Srimad Bhagavad Gita, Swami Vivekananda read Srimad Bhagavad Gita thoroughly and he concluded something. So I would like to talk about this particular thing by the word of Swami Vivekananda. By the word of Swami Vivekananda, I would say the path of systemized devotion for the attainment of union with the Absolute. The path of systemized devotion, systematic devotion, step by step, systematic, in arranged in order wise, for the attainment of the union with the Absolute. Union, get attainment with union with Absolute. Absolute, the Supreme Personality of Godhead. God is oneness. The unity between the soul and super soul. The union between the soul and super soul. This is called Bhakti. And the 12th chapter of Srimad Bhagavad Gita, Lord Madhusudana states, Bhakti Yoga is one of the path to the highest spiritual attainment. In Lord Krishna, in 12th chapter said, Bhakti Yoga as one of the paths to attain the highest spiritual attachment. Bhakti Yoga, the yogi who established in oneness, honor me as abiding in all beings. Always honor. I am situated in the heart of each and every living beings. And whoever worship me, जो मेरा भक्त है, हमेशा वो मेरी पूजा करेगा, मेरी आराधना करेगा, मेरी स्तुति करेगा, मेरा भक्त कभी मेरे से अलग नहीं होगा. This is said by Lord Krishna. And my devotee can see everywhere. My devotee can see me at everywhere, in each and every particle, as well as in each and every living entity. In whatever way he otherwise acts, dwell in me. Whatever function he has done, he is dwelling in me. My devotee is always dwelling in me. He who see equality in everything, in the image of his oneness, Arjuna, whatever in the pleasure and or in pain, the seeing the all things equally, whether there is a pleasure or pain. Equality and equal treatment to everyone. Whether there is success or failure, there is a pain as well as a pleasure. Is thought to be supreme yogi. That person is known as a supreme yogi. Only that person is known as a supreme yogi, who can see me everywhere and equal treatment to everyone. The person who is in my devotion, that person can see everything and everyone equally and everything equally, without being disturbed, without being deviated. Of all the yogi, he who has merged his inner self in me, जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में एस्टैब्लिश किया, उनकी भक्ति कर रहे हैं, अपना सब कुछ सरेंडर किया है. दैट पर्सन, दैट डिवोटी इज ऑलवेज सिचुएटेड इनटू मी. जिसने अपनी फेथ, श्रद्धा मेरे में एस्टैब्लिश की है, लॉर्ड कृष्णा से मेरे में एस्टैब्लिश की है, वो डिवोटी हमेशा मुझे प्रिय है और हमेशा मेरे साथ रहेगा. अकॉर्डिंग टू द रामायण, I would say, according to Ramana Maharshi, states David frequently, Bhakti is a surrender to the divine with a oneness, one's heart. Bhakti is all about surrender. And I would say, Bhakti is the only state of mind. Bhakti is not a name of any work, any function. Bhakti is named the state of mind. और हमारी मन की मनस्थिति है, उसी को हम भक्ति कहेंगे. अगर हम पूजा आरती आराधना कर रहे हैं, डिवोशनल प्रैक्टिस में है और हमारा मन कहीं और भटक रहा है, दिस इज नॉट कॉल्ड भक्ति. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ भक्ति, लाइक आत्मा भक्ति, डिवोशन टू द वंस आत्मा. हमारी आत्मा सुप्रीम, हमारी आत्मा का रियलाइजेशन के लिए भक्ति कर, दिस इज आत्मा भक्ति. ईश्वरा भक्ति, डिवोशन टू द फॉर्मलेस बीइंग्स, गॉड और सुप्रीम पर्सन, गॉडेड और कॉस्मिक एज वेल. इष्ट देवता मीन्स पर्सनल डाइटी, पर्सनल गॉड और पर्सनल गॉडिस. बहुत सारे गॉडिस है, मतलब 33 करोड़ देवी देवता है, उसकी हम भक्ति कर रहे हैं. तो सब इष्ट देवता की भक्ति. और गुरु भक्ति, द डिवोशन टू द गुरु और द टीचर, हमारे टीचर की भक्ति करें, गुरु की भक्ति कर रहे हैं. तो लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते हैं कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ भक्तिज, पति भक्ति, स्वामी भक्ति, मित्र भक्ति, परमात्मा की भक्ति. बट सबसे श्रेष्ठ कौन सी भक्ति है? परमात्मा की भक्ति. अपने आप को परमात्मा को सरेंडर करना. बट मतलब भक्ति किसी कार्य का नाम नहीं है. भक्ति तो केवल मन की स्थिति का नाम है, मन स्थिति का नाम है, ओनली स्टेट ऑफ माइंड.
तो हम जब अपने आप को परमात्मा को समर्पण करते हैं, परमात्मा को सरेंडर करते हैं, तभी हम भक्ति के कार्य में लग जाते हैं। और भक्ति के कार्य में लगने के लिए हमें टोटल सरेंडर, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। समर्पण ही भक्ति का प्रथम चरण है। समर्पण से भक्ति स्टार्ट होती है। समर्पण के बिना भक्ति कभी स्टार्ट नहीं होती। अगर जिस व्यक्ति के प्रति समर्पण कर रहे हो आप, लिसन इट वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी यूजफुल इन योर लाइफ। अगर कहीं कोई दुष्ट व्यक्ति के प्रति आप समर्पण कर रहे हो, तब आप उसी के रंग में रंग जाओगे। आप हो चाहे वो दुष्ट व्यक्ति जिसके प्रति आपने समर्पण किया है, चाहे वो खराब कार्य करे, दुष्ट कार्य करे, अच्छा कार्य करे, आपको उसमें अच्छा ही दिखेंगी। आपको कभी उसमें कमी नहीं दिखेंगी, क्योंकि आपने उसके प्रति समर्पण कर दिया है। जैसे अंगराज कर्ण ने दुर्योधन को समर्पित किया था। दुर्योधन चाहे कितना भी बुरा कार्य करे, अंगराज कर्ण को उसमें अच्छा ही दिखती थी, क्योंकि अंगराज कर्ण सत्य को टुकड़ों में देखते थे, इसलिए अच्छा ही दिखती थी। तो दुष्ट वृत्ति के प्रति समर्पण के कारण हम अपने आप को दुष्ट, अपने कार्य को, अपने कर्म को दुष्ट बना लेते हैं। इसीलिए समर्पण हमेशा उत्तम व्यक्ति के प्रति होना चाहिए। वी हैव टू सरेंडर अनटू द सुप्रीम, अनटू द बेस्ट, बाय विच वी कैन मेक आवरसेल्फ बेस्ट, वी कैन अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड लॉर्ड कृष्णा. In Lord Krishna said in devotional services, chapter number 12, Arjuna here asked to Lord Krishna, which are considered to be the most perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship in the impersonal brahmana and unmanifested. मतलब जो कॉस्मिक अनमैनिफेस्टेड चीज़ें हैं, वो ब्राह्मण जिसकी वर्शिप कर रहे हैं, वो बेस्ट है या परमात्मा लॉर्ड कृष्ण आपकी भक्ति बेस्ट है? तो इस दोनों में से कौन सी भक्ति बेस्ट है? अभी लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच माया अवश्य मन ये मन नित्य युक्तो उपसते श्रद्धा परियोपेता ते मी युक्त आत्मा मतः, युक्त आत्मा मतः। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण क्या कहते हैं? The supreme personality of God, Lord Sri Madhusudan Krishna here said, those who fix their mind on my personal form, लॉर्ड कृष्णा के जो अपना दिमाग, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी सेंसेस जो मेरे में फिक्स कर रहे हैं, मेरे में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, मेरे में स्थापित कर रहे हैं, आर ऑलवेज एंगेज इन द वर्शिप मी विथ अ ग्रेट ट्रांसेंडेंटल फेथ, आर कंसिडर्ड बाय मी टू बी मोस्ट परफेक्ट। जो मेरी भक्ति करे, मेरी पूजा करे, जो उसने अपना माइंड, इंटेलिजेंस एंड सेंसेस मेरे में फिक्स की है, वो सबसे परफेक्ट है। These people who establish their devotion, who are rendering their devotional service unto me, they are the supreme and they are most perfect people. This is said by Lord Krishna. Lord Krishna further said, but those who fully worship the unmanifested, listen it very carefully. Lord Krishna यहाँ पे unmanifested, जो कॉस्मिक वननेस फॉर्म है ना, जो वननेस फॉर्म है, क्या मतलब? जो फॉर्मलेस गॉड है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, निराकार भगवान है, उसकी जो पूजा करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण कहते हैं, who fully worship the unmanifested, that who lies beyond the perception of the senses, जो मतलब निराकार भगवान की पूजा करते हैं, उनमें क्या होता है पता है? अपने सेंसेस, अपने परसेप्शन, अपना जो माइंड, इंटेलिजेंस, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और इस मटेरियल जगत में घिरे रहते हैं कि नहीं, इस मटेरियल जगत में इतने घिरे रहेंगे कि उनको साल्वेशन, मोक्षा नहीं मिलेगा। ऑल प्रिवेडिंग एंड इनकन्विंसेबल, अनचेंजिंग, फिक्स्ड एंड इमूवेबल, द पर्सनल कंसेप्शन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो मतलब एक एब्सोल्यूट ट्रूथ होता है, परमात्मा होता है, उनका कॉन्सेप्ट उनके लिए अलग होगा कि नहीं, अनमूवेबल है, स्टेडी है, उसके बाद सारा संसार और सब कुछ, वो परमात्मा, बहुत सारी चीज़ें, वो मतलब मिस परसेप्शन होता है। वो कभी बाय कंट्रोलिंग द वेरियस सेंसेस एंड बीइंग इक्वली डिस्पोज्ड टू एवरीवन, सच अ पर्सन एंगेज इन द वेलफेयर टू ऑल एट अ लास्ट अचीव टू मी। उस सब मतलब देखो, निराकार परमात्मा की पूजा करते हैं ना, तो क्या होता है कि परमात्मा हम जानते हैं, अब मतलब उसके बाद हम डिवोशनल प्रैक्टिसेस करते हैं। डिवोशनल प्रैक्टिस के बिना ही हम लॉर्ड कृष्णा को प्राप्त कर पाएंगे। जो निराकार भगवान की पूजा करते हैं, वो भी डिवोशनल प्रैक्टिस के साथ जुड़े होते हैं, वो भी अल्टीमेटली लॉर्ड विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लिसन इट वेरी केयरफुली, विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दे कैन ओनली अटेन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एंड लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड श्री हरि विष्णु। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा फर्दर से क्लेशो दिकातारस तेसम अव्यक्ता सक्ता चेतासम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह
वधीर अवाप्यते। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं फॉर दोज हुज माइंड आर अटैच्ड टू द मैनिफेस्टेड, फॉर दोज हुज माइंड्स आर अटैच्ड टू द अनमैनिफेस्टेड पर्सनल फीचर्स ऑफ सुप्रीम, एडवांसमेंट इज रिक्वायर्ड, इज वेरी ट्रबलसम। जिसको मतलब जिसका माइंड निराकार भगवान की तरफ है ना, वो क्या करेंगे पता है, वो उनके साथ अटैच हो जाएंगे। निराकार है, भगवान का कोई फॉर्म है ही नहीं। उनके जो सुप्रीम पर्सनालिटी लॉर्ड कृष्ण, उनके फीचर्स है, उनके जो एडवांसमेंट है, उनको कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी ट्रबलसम टू मेक अ प्रोग्रेस इन दैट डिसिप्लिन इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर एम्बॉयडेड। जो मतलब एम्बॉयडेड है उसके लिए प्रोग्रेस करना डिफिकल्ट है, एम्बॉयडेड सोल के लिए डिफिकल्ट है, ऐसी आत्माओं के लिए जो निराकार भगवान की पूजा करते हैं उनके लिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मही संन्यास मत परह अन्ये एव योगेन मा ध्यायन्ते उपासते तेसा मह समृद्धता मृत्यु संसार सागरत। मृत्यु संसार सागरत, मृत्यु संसार का जो सागर है उसको मैं तार लूंगा, उसको मैं अपने पास बुला लूंगा, उसको कभी मतलब इस संसार में वापस आने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। भवामि न चिरात्या पार्थ मया वेशति चेतसाम, मया वेशति चेतसाम। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण कहते हैं बट दोज हु वर्शिप मी, जो मेरी पूजा करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, एंड गिविंग अप ऑल देयर एक्टिविटीज अनटू मी, जो अपनी एक्टिविटी है, जो अपना कार्य है मुझे समर्पित करते हैं, एंड बीइंग डिवोटेड टू मी विदाउट डेविएशन, बीइंग डिवोटेड टू मी, जो मेरे भक्त बनते हैं, कोई भटकते नहीं, मेरे भक्ति की राह से कोई भटकते नहीं, एंगेज इन डिवोशनल सर्विस, ऑलवेज मेडिटेटिंग अपॉन मी, हैविंग फिक्स्ड देयर माइंड अपॉन मी, ओशन ऑफ पृथा फ्रॉम देम आई एम द शिप डिलीवर फ्रॉम द ओशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ। मृत्यु और जन्म के सागर से मैं उनको शिप डिलीवर हूँ, मैं उनको मोक्ष दिला दूंगा, उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो मेरी भक्ति करता है, जो अपना माइंड है, अपनी सेंसेस है मेरे में फिक्स करता है, वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड मया इव मन अधस्तवा मही बुद्धिम निवशिष्यसि मया इव अत ऊर्ध्वम ना समस्या। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण फिक्स्ड योर माइंड अपॉन मी द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड एंड एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस अपॉन मी, thus यू विल लिव इन मी एंड ऑलवेज यू विल लिव। तुम मेरे में जिंदा रहोगे। तुम अपना माइंड, अपना जो इंटेलिजेंस मेरे में फिक्स कर दो, अपना सेंसेस मेरे में फिक्स कर दो, यू विल श्योरली लिव इन मी। लॉर्ड कृष्ण फर्दर से अतचित समाधातु न शक्रोषि मयि स्थिरम अभ्यास योग न तत्व मामिष्यासु धनंजय। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, क्या कहते हैं, माय डियर अर्जुना ओ विनर ऑफ वेल्थ, इफ यू कांट फिक्स योर माइंड अपॉन मी, अगर तुम अपना दिमाग मेरे में फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो क्या करो, देन फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ भक्ति योग। तो भक्ति योग का रेगुलेटरी प्रिंसिपल उसको फॉलो करो, देन यू विल श्योरली अटेन मी। अगर भक्ति योग का प्रिंसिपल फॉलो करोगे तभी तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। लॉर्ड कृष्ण फर्दर से अभियस्य तु अस्मार्थोसी मत कर्म परमो भव मद अर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यसि। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण कहते इफ यू कांट प्रैक्टिस द रेगुलेटरी प्रिंसिपल ऑफ भक्ति योगा देन जस्ट ट्राई टू वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम करो, जो भी काम करो मुझे समर्पित करो, उससे क्या होगा, यू विल डेफिनेटली कम टू मी एंड यू विल डेफिनेटली अटेन द परफेक्ट स्टेज। उसके बाद लॉर्ड कृष्ण कहते हैं इफ हाउ एवर यू आर अनेबल टू वर्क इन कॉन्शियसनेस अपॉन मी, अगर मेरे कॉन्शियसनेस में भी अगर तुम काम नहीं कर पा रहे तो क्या करो, गिविंग अप ऑल द रिजल्ट ऑफ योर वर्क, निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म से भी तुम मेरे में अंदर सिचुएटेड रहोगे। जो निराकार भगवान की पूजा करते हैं वो भी निष्काम कर्म योगी बन जाते हैं, तो भी लॉर्ड कृष्णा में समर्पित रहते हैं, वो लॉर्ड कृष्णा में सिचुएटेड रहते हैं। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास जनद ध्यायम विशिष्यते ध्यानत कर्म फल त्यागस त्याग चंतिर अनंतरम। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा क्या कहता है, इफ यू कांट टेक दिस प्रैक्टिस देन एंगेज योर सेल्फ इन द कल्टिवेशन ऑफ नॉलेज। कल्टिवेशन ज्ञान योग में चले जाओ, नॉलेज कल्टिवेट करो, जान लो कि तुम क्या हो, तुम्हारी आत्मा क्या है और शरीर और आत्मा का संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, वो जान लो। बेटर देन नॉलेज
However, is meditation, and better than meditation is a renunciation of the fruits of action. By such a renunciation one can attain the peace of mind. तुम peace of mind प्राप्त कर लोगे और परमात्मा में अपनी बुद्धि स्थिर कर पाओगे. अद्वेष सर्वभूतानाम मैतिर करुणा इव च. निर्मेयो निरंकार सम दुख सुखम समी संतुष्ट सत योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मन बुद्धिर यो मद भक्ता समी प्रिय यो 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 मद भक्ता चमी प्रिय समी प्रिय. लॉर्ड कृष्ण कहते हैं क्या जो कौन सा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है? वन हु इज नॉट एनवियस बट इज काइंड फ्रेंड टू ऑल लिविंग एंटिटी. जो है व्यक्ति वो सबका काइंड फ्रेंड है, सबको इक्वली ट्रीट करता है, सभी जीव जंतु में मुझे देखता है. एंड who does not think himself a proprietor and also free from the false ego. जिसके प्रति ईगो नहीं, जिसको अपने अंदर ईगो नहीं है. एंड who is equal to both happiness and distress. जो अपने आप को इक्वल रख पाता है, सुख है दुख है दोनों परिस्थिति में अपने आप को इक्वल रख पाता है, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है. वो इज टॉलरेंट, उसके सहन शक्ति ज़्यादा है. एंड ऑलवेज डिटर्मिनेशन, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेटेड पर्सन. एंड हिज माइंड एंड इंटेलिजेंस फिक्स ऑन मी. उसका माइंड इंटेलिजेंस एंड बॉडी एंड एज वेल एज सेंसेस फिक्स्ड अपॉन मी, फिक्स्ड ऑन मी. सच अ डिवोटी इज वेरी डियर टू मी. ऐसा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है. उसके बाद कहते हैं यस्मान नो द्विजते लोको. दिस इज मोस्ट फेवरेट, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट वर्स. यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यह हर्षा मर्षो भाग्य वीर मुक्तो ये समी प्रिय. लॉर्ड कृष्ण कहते हैं यस्मान नो द्विजते लोको, यस्मान नो द्विजते लोको. जो व्यक्ति जो भक्त आसपास कितने भी लोग हैं कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही वो किसी को डिस्टर्ब होता, उसकी मनस्थिति कभी डिस्टर्ब नहीं होती. ऐसा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है. लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं ही बाय वूम नो वन इज पुट इन डिफिकल्टी, ही बाय वूम नो वन पुट इनटू डिफिकल्टी एंड हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन, हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड बाय एनीवन, हु इज इक्विपोज्ड इन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस. चाहे सुख है दुख है दोनों परिस्थिति में एक समान रहे. फियर एंड एग्जाइटी, चिंता ना करे डर ना हो उसको, इज वेरी डियर टू मी. ऐसा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है. माय डियर कृष्णा कहते हैं यहाँ पे माई डिवोटी हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द एक्टिविटीज, हु इज प्योर एक्सपर्ट विदाउट केयर फ्री फ्रॉम द ऑल द पेन्स एंड नॉट स्ट्राइविंग फॉर सम रिजल्ट इज वेरी डियर टू मी. जो मतलब जो भी फ्रूटिवी एक्शन है, फ्रूटिवी एक्शन है, जो मतलब कर्म फल की आशा के त्याग करके जीता है, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है. यो ना हर्षति ना द्वेषति ना शोषति ना कंकासति शुभ अशुभ परित्यजति भक्त माम यचमी प्रिय नरः. ऐसा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय. वन हु नाइदर रिजॉइस नॉर ग्रीव्स, who neither lament nor desire and who renounce both auspicious and inauspicious things, such a devotee is very dear to me. ऐसा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है. सम शत्रु च मित्र तथा मान अपमान योह शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर मुनि संतुष्टो एन केनचित, संतुष्टो एन केनचित. तुल्य निंदा, जो किसी की निंदा ना करता, तुल्य निंदा स्तुतिर मुनि संतुष्टो एन केनचित. अनिकेत स्थिर मतिर, अनिकेत स्थिर मत, जिसकी मति स्थिर है, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है. सम शत्रु च मित्र तथा मान अपमान योह शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर मुनि संतुष्टो एन केनचित. अनिकेत स्थिर मतिर भक्त माम मी प्रिय नरः. ऐसा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है. वन हु इज इक्वल टू फ्रेंड एंड एनिमी, चाहे दुश्मन हो या मित्र हो दोनों को इक्वली ट्रीटमेंट दे. हु इज इक्विपोज्ड इन ऑनर एंड डिसऑनर, चाहे मान हो या अपमान हो दोनों परिस्थिति में एक समान रहे. ही ठंडी हो या गर्मी हो, सुख हो या दुख हो, या मतलब फेम हो या कीर्ति हो या अपकीर्ति हो, दोनों परिस्थिति में एक समान रहे. हु इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम कंटामिनेटिंग एसोसिएशन, ऑलवेज साइलेंट एंड सेटिस्फाइड विथ एनीथिंग. Who doesn't care for any residence, who is fixed in knowledge and who is engaged in the devotional service, such a person is very dear to me. ऐसा person, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है. This is stated by Lord Krishna. And those who worship this imperishable path of devotion service
who completely engage themselves in the faith, making me the supreme goal is very dear to me. ऐसा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय जो अपनी जीवन का सुप्रीम गोल मुझे बना दे, ऐसा भक्त मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है. So thank you so much. I hope you all can understand what is meaning of devotion and how to perform the devotional practices and how many types of devotional services. The best among the all devotional practices or devotional type is the परमात्मा की भक्ति or the devotion to the supreme personality of Godhead, Lord Krishna, Lord Shri Hari Vishnu. Thank you so much. Hare Krishna, Radhe Radhe. Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of Bhagavad Gita, and today I am going to talk about devotion, the characteristics of devotee, and also the following step by which we have to follow and achieve the supreme personality of Godhead by the rendering service, devotional service to the supreme personality of Godhead by the devotional path. But before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita as it is written by A.C. Bhaktivedanta Srila Mahaprabhu from ISKCON temple, and I would say Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but in true sense is pure book of the science and humanity. And I would like to say Srimad Bhagavad Gita is the best way to morally motivate to anybody, and I am trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide on the basis of Srimad Bhagavad Gita. Let's start. What is devotion? What are the ways? How many types of devotion? Let's start. भक्ति क्या है उसके बारे में बात करेंगे. Devotion is all about worship. Devotional worship. What is the meaning of devotional worship? Devotional worship direct to one supreme deity, supreme personality of Godhead, Lord Sri Hari Vishnu, Lord Krishna. Directly worship, directly render our service, devotional service to the supreme personality of Godhead. Devotional service in terms of faith, love, our breath, our everything. अपना सब कुछ किसी को अर्पण कर देना, परमात्मा को अर्पण करें इन अवर वर्शिप, हमारी प्रार्थना में. Usually Vishnu in the incarnations as a Rama and Krishna, Lord Rama and Lord Krishna, as well as Lord Shiva, and also other devotees, other deities, not devotee, by whose grace salvation may be attached, by whose grace we will attain the salvation. The supreme goal of the devotion is to attain a salvation. भक्ति का सुप्रीम गोल क्या है? भक्ति का गोल क्या है? भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू अटेन साल्वेशन, मोक्ष लेने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा के पास जाने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं. इन ऑर्डर टू अटेन देम, in order to attain the supreme personality of Godhead, we would like to worship the supreme personality of Godhead. In order to get attached with the supreme personality of Godhead by all, regardless of sex, caste and classes. Bhakti literally means what is meaning of bhakti? Bhakti means attachment, participation, fondness for, homage, faith, love, devotion, worship and purity. The meaning of bhakti, there are different terms. There are many terms which are used over here. The meaning of bhakti is attachment, attached with the supreme personality of Godhead, Lord Krishna. Partition in the rendering practice of rendering the devotional practices to Lord Krishna or the supreme personality of Godhead. The fondness for Lord Krishna. हर जगह पे कृष्णा ही दिखते हैं. जो मेरा भक्त है हमेशा प्योर रहेगा. ही इज इम्पेरिसेबल. जो मेरा भक्त है ना हमेशा इम्पेरिसेबल रहेगा, उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता है. ही इज इमॉर्टल. होमेज, जो हमें मुझे आहुति दे, लॉर्ड कृष्णा से सेक्रीफाइस करे, मेरे लिए सेक्रीफाइस, मेरे लिए काम करे, मेरे लिए सांस ले, वो मेरा भक्त है. Faith, always faith in me, however adverse circumstances come across in his life, but he would have a faith in me, and he would have a supreme and transcendental love toward me, toward his deity, toward his supreme personality of Godhead, toward his God. This is called bhakti and devotion, worship and purity. Purity is most important. Bhagavad Gita said about bhakti. Bhagavad Gita connotes one of the possible path of spirituality and toward the moksha as a bhakti marga. Bhakti marg is very easy and best way to get a moksha or salvation and attain the spirituality and attain the supreme personality to Godhead. It is stated in Srimad Bhagavad Gita. Bhakti Yoga, the meaning of Bhakti Yoga is described by